سب سے پہلے امریکی صدر کی بات کریں گے۔ میں نے پاکستان کی درخواست پر ایران کو موقع دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر میرے بہت قریب ہیں، وہ ایران کے بھی قریب ہیں۔ ڈیل کے لیے انہوں نے بہت محنت کی اور اب بھی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، بولے ہم ڈیل کے قریب ہیں لیکن ایران معاملے کو ٹال رہا ہے۔ تہران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر اتفاق کر لیا، بات چیت ہو چکی، بس دستاویزات پر دستخط ہونا باقی ہے۔ ہم ایسی ڈیل چاہتے ہیں جو بامانی اور ہمارے مفاد میں ہو۔ امریکی صدر کا آج پھر ایران پر شدید حملے کرنے کا اعلان، بولے پاور پلانٹ اور پلوں پر حملے کریں گے یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کل ہم نے ایران پر شدید حملے کیے، آج بھی کرنے والے ہیں۔ And I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. بجلی اور پانی کے مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت کا اظہار نہیں بلکہ کسی قوم کے عزم کے سامنے بے بسی کی علامت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، کہا ایران اپنے ماہرین کی صلاحیت، قومی اتحاد اور یکجہتی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر دباؤ اور ہر دھمکی کے مقابلے میں مضبوطی سے ڈٹا رہے گا۔ بجلی اور پانی کے مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت کا اظہار نہیں بلکہ کسی قوم کے عزم کے سامنے بے بسی کی علامت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، کہا ایران اپنے ماہرین کی صلاحیت، قومی اتحاد اور یکجہتی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر دباؤ اور ہر دھمکی کے مقابلے میں مضبوطی سے ڈٹا رہے گا۔ بجلی اور پانی کے مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت کا اظہار نہیں بلکہ کسی قوم کے عزم کے سامنے بے بسی کی علامت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، کہا ایران اپنے ماہرین کی صلاحیت، قومی اتحاد اور یکجہتی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر دباؤ اور ہر دھمکی کے مقابلے میں مضبوطی سے ڈٹا رہے گا۔ بجلی اور پانی کے مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت کا اظہار نہیں بلکہ کسی قوم کے عزم کے سامنے بے بسی کی علامت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، کہا ایران اپنے ماہرین کی صلاحیت، قومی اتحاد اور یکجہتی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر دباؤ اور ہر دھمکی کے مقابلے میں مضبوطی سے ڈٹا رہے گا۔ مظفر آباد کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، ہیلی کاپٹر پر سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق المناک حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی تکنیکی وجہ کا تعین کرنے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک فوج کے تمام رینکس کی جانب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دکھ کی گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سینٹ میں ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا بھی MI-17 ہیلی کاپٹر کے حادثے پر اظہار افسوس، شہداء کے لیے دعائے مغفرت، کہا ہیلی کاپٹر میں سوار اہلکاروں کی شہادت قوم کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت اس بار بھی بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ GDP گروتھ 4.2% ہدف کے مقابلے 3.7% تک محدود رہنے کا تخمینہ۔ IMF، عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی شرح نمو کم رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ فی کس آمدن زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ اوسط مہنگائی 7.50% سالانہ ہدف کے مقابلے میں 11 ماہ کے دوران 7% رہی۔ مئی میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.66% تک جا پہنچی۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت اس بار بھی بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔
जीडीपी ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने भी शरह नमू कम रहने की पेशगोई की थी। फीकस आमदन, ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी पूरा ना हो सका। औसत महंगाई 7.50%, सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। मई में महंगाई की माहाना शरह 11.66% तक जा पहुंची। आपको बताएं कि हुकूमत इस बार भी बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। जीडीपी ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने भी शरह नमू कम रहने की पेशगोई की थी। फीकस आमदन, ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी पूरा ना हो सका। औसत महंगाई 7.50%, सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। मई में महंगाई की माहाना शरह 11.66% तक जा पहुंची। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% और महंगाई का टारगेट 8.2% मुकर्रर। आइंदा माली साल के लिए 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर कर लिया। विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 1,046 अरब की बचत करेंगे। विफाकी PSDP में 126 अरब रुपए कमी करने पर इत्तफाक कर लिया गया। पंजाब के तरक्याती बजट में 701 अरब रुपए की कमी की गई है। सिंध के तरक्याती बजट में 110 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स में 109 अरब रुपए की कमी। दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू न करने का भी फैसला किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि विफाक और सूबों ने अवामी मफाद और मुआशी तरक्की के लिए बेहतरीन फैसले किए। वजीर आजम ने नए विफाकी बजट की तैयारी में मुशावरत और मुआविनत के लिए तमाम वज़राए आला का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुहाजिर नशिस्तें खत्म होने से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत 38 में से 35 मुतालबात मान चुकी, फिर भी इंतशार क्यों फैलाया जा रहा है? कश्मीर हमारा शारक है और कश्मीर हमें बहुत अजीज़ है। इसी वजह से सारे पाकिस्तान से हट के कश्मीर के लिए उनके अवामी मुतालबा के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले साल एक कमेटी तश्कील दी। कश्मीर में बिजली 3 रुपए यूनिट में फ़राहम की जाती है। कश्मीर में आटे की कीमत 2,000 रुपये 40 किलोग्राम थैले का है और इसकी जो सब्सिडी है सारी ये वफाकी हुकूमत अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि जी वो 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएँ जो कि महाजरीन की सीटें हैं, उनकी सीटें हैं जिनकी वजह से कश्मीर कॉज है। अगर बॉर्डर पार से तारे हिलें और वहां से इंस्ट्रक्शंस आए कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो खुदारा इस पे हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए। इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न करें। अवामी मसाइल की आड़ में अलहदगी पसंद एजेंडा। आज़ाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के चेहरे से नकाब उतर गया। शुरू में आटे, बिजली और महंगाई के नारे लगाने वालों का मकसद वाज़ेह हो गया कि उनका असल हदफ अलहदगी पसंद एजेंडा है। अलग पासपोर्ट, अलग झंडा और अलग रियासती शनाख्त के बेमानी मुतालबात का मकसद भारतीय एजेंडे को तक़वियत देना है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना की हर्जा सराई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अवामी मसाइल की आड़ में अलहदगी पसंद एजेंडा। आज़ाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के चेहरे से नकाब उतर गया। शुरू में आटे, बिजली और महंगाई के नारे लगाने वालों का मकसद वाज़ेह हो गया कि उनका असल हदफ अलहदगी पसंद एजेंडा है। अलग पासपोर्ट, अलग झंडा और अलग रियासती शनाख्त के बेमानी मुतालबात का मकसद भारतीय एजेंडे को तक़वियत देना है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना की हर्जा सराई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अवामी मसाइल की आड़ में अलहदगी पसंद एजेंडा। आज़ाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के चेहरे से नकाब उतर गया। शुरू में आटे, बिजली और महंगाई के नारे लगाने वालों का मकसद वाज़ेह हो गया कि उनका असल हदफ अलहदगी पसंद एजेंडा है। अलग पासपोर्ट, अलग झंडा और अलग रियासती शनाख्त के बेमानी मुतालबात का मकसद भारतीय एजेंडे को तक़वियत देना है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना की हर्जा सराई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके सुरजानी में जहेज और मोटरसाइकिल ना लाने पर शौहर जल्लाद बन गया। बीवी पर मुबैना तशद्दुद, मारपीट के बाद घर से निकाल दिया। 18 साल की मिसबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। वालिदा की मुद्दत में मुलजिम शहरयार भट्ट के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फरार मुलजिम का वीडियो बयान भी सामने आ गया।
रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। जहेज की लानत ने एक और लड़की की जान ले ली। सरजानी टाउन में शौहर के मुबैना तशद्दुद से मिसबा जाँ बहक। लड़की की वालदा की मुद्दत में शहरियार बट नामी शख्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मिसबा ने 19 मार्च को पसंद की शादी की। चंद रोज बाद शौहर ने लड़की के अहले खाना से मोटरसाइकिल और जहेज का मुतालबा किया। ना देने पर मिसबा को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले खाना ने जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो दम तोड़ गई। का निशान है, ऐसे पूरे जिस्म का एक हिस्सा नहीं छोड़ा। मुलजिम का बीवी पर तशद्दुद से इनकार। इन लोगों ने मेरी वाइफ को कत्ल किया है। ये लोग मेरी वाइफ से जबरदस्ती मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहे थे। मेरी वाइफ सही सलामत यहाँ से इनके घर गई थी और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने मेरी वाइफ का कत्ल किया है। अहले खाना ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया जिसके बाइस वजह मौत सामने ना आ सकी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। कराची से ही खबर है जहां खातून पुलिस एहलकार अपने शौहर की कातिल निकली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमजा की लाश औरंगी टाउन में उसके घर से मिली थी। मुलजिमा ने साबिक शौहर के साथ मिलकर हमजा की जान ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमजा को घर के अंदर फंदा लगाकर कत्ल किया गया। वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। मोमिनाबाद में हमजा नामी नौजवान कत्ल। कातिल कोई और नहीं, पुलिस एहलकार बीवी निकली। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। दुआ ने साबिका शौहर के साथ कत्ल की मंसूबाबंदी की। हमजा को घर के अंदर फंदा लगाकर कत्ल किया गया। मुलजिमा ने मकतूल से दूसरी शादी की थी। पहले शौहर से 3 बच्चे हैं। मकतूल के वालिद और बहन का कहना है दुआ और हमजा के दरमियान झगड़ा रहता था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दुआ ने साबिका शौहर फहद के साथ मिलकर हमजा की जान ली और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। ये मर्डर हुआ है इसका साबका शौहर और ये दुआ और इसका भाई और भी जो कोई मुलव्विस हो सकते हैं। ये बिले हमारा भाई तो चला गया, हमें इंसाफ चाहिए हुकूमत से। मुलजिमा का साबका शौहर ताहाल फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में पुलिस के खिलाफ एक और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की शिकायत सामने आ गई। मुतासरा खातून ने कराची पुलिस चीफ को दरख्वास्त दे दी। मुतासरा खातून माहम खान के मुताबिक डिफेंस थाने के पुलिस एहलकारों ने पहले उसे और फिर उसके मंगेतर को घर से उठाया। कोकेन फरोख्त करने का इल्जाम लगाते रहे, हिरासा भी किया गया। पुलिस एहलकार पहले डिफेंस थाने ले गए, बाद में किसी गेस्ट हाउस मुंतकिल किया। मुतासरा खातून ने दावा किया है कि एहलकारों ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तावान तलब किया और फिर 1 लाख वसूल करके छोड़ दिया। किसी को इत्तला देने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। कराची में पुलिस के खिलाफ एक और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की शिकायत सामने आ गई। मुतासरा खातून ने कराची पुलिस चीफ को दरख्वास्त दे दी। मुतासरा खातून माहम खान के मुताबिक डिफेंस थाने के पुलिस एहलकारों ने पहले उसे और फिर उसके मंगेतर को घर से उठाया। कोकेन फरोख्त करने का इल्जाम लगाते रहे, हिरासा भी किया गया। पुलिस एहलकार पहले डिफेंस थाने ले गए, बाद में किसी गेस्ट हाउस मुंतकिल किया। मुतासरा खातून ने दावा किया है कि एहलकारों ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तावान तलब किया और फिर 1 लाख वसूल करके छोड़ दिया। किसी को इत्तला देने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। कराची में पुलिस के खिलाफ एक और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की शिकायत सामने आ गई। मुतासरा खातून ने कराची पुलिस चीफ को दरख्वास्त दे दी। मुतासरा खातून माहम खान के मुताबिक डिफेंस थाने के पुलिस एहलकारों ने पहले उसे और फिर उसके मंगेतर को घर से उठाया। कोकेन फरोख्त करने का इल्जाम लगाते रहे, हिरासा भी किया गया। पुलिस एहलकार पहले डिफेंस थाने ले गए, बाद में किसी गेस्ट हाउस मुंतकिल किया। मुतासरा खातून ने दावा किया है कि एहलकारों ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तावान तलब किया और फिर 1 लाख वसूल करके छोड़ दिया। किसी को इत्तला देने पर संगीन नताइज की धमकियां दी।